چاہیے. اس لیے برائی، اب میں اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کو لے لوں، برائی جب ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو برائیوں کو چھوڑیں گے، لیکن ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہیں. برائی نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے. آپ فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ظہر پڑھنے میں آپ کو اچھا لگے گا، نہیں میں نے فجر پڑھی ہے. جب اتنی مشکل نماز جماعت کے ساتھ تک نہیں ہوئی تو ظہر میں بھی جاؤں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نیکی نے آپ کے لیے ظہر آسان کر دیا. ظہر پڑھی تو عصر آسان کر دیا. میں عصر پڑھنے کے بعد مغرب کیسے چھوڑ دوں؟ 3 وقت کی پڑھ چکا ہوں، چوتھی کیسے چھوڑوں؟ نہیں میں جاؤں گا. اب آپ نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی. آپ نے جہاں ایک نیکی اٹھی اٹھ کر کی صبح، اس ایک نیکی کی وجہ سے آپ کی 5 وقت کی نمازیں بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو گئی. اور جہاں آپ اٹھ کر صبح فجر میں سستی کر گئے، نہیں اٹھے، پڑھے ہی نہیں، اب ظہر کی اذان کی آواز آئی، ارے جب ہم نے فجر نہیں پڑھی تو اب ظہر کیا پڑھیں گے؟ ارے چھوڑو، پڑھنا ہے تو 5 وقت کی پڑھو، نہیں تو کیا فائدہ. عصر کی اذان کا وقت آیا، ارے جب فجر بھی چھوٹی ظہر بھی چھوٹی تو اب عصر کیا کریں گے؟ ارے ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ کہ 2 ٹائم کی پڑھو، 3 ٹائم کی چھوڑ دو، 3 کی پڑھو، 2 کی چھوڑ دو. آپ نے ایک نماز چھوڑی، اب آپ کی 5 نمازیں چھوڑ گئی، کیونکہ شیطان پھر وہی چیزیں ڈالتا ہے. نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی کو جنم دیتی ہے. ایک برائی آپ کریں گے پھر وہ برائی دوسری برائی کی طرف آپ کو بھارے گی. جب دوسرا گناہ کر بیٹھیں گے آپ کا حوصلہ اور بلند ہوگا، آپ تیسرا گناہ بھی آسانی سے کریں گے. اس آدمی کی طرح جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی نیک دیندار لڑکے کی تلاش میں نکلا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں، اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ میں مانگوں اور کوئی ہمیں لڑکا مل جائے اچھا دیندار. وہ نکلا، اس کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک لڑکا خالی ہے اور وہ میری بیٹی کے لیے بڑا مناسب ہے، کل تو قامت بھی ٹھیک ہے، اچھا کماتا کھاتا بھی ہے. گیا، نکاح کا پیغام اس لڑکے کو دینے سے پہلے سوچتا ہے اس لڑکے کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لوں کیسا ہے. اس کے پڑوسی سے پوچھنا شروع کیا، کیونکہ پڑوسی کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. تو اس نے پڑوسی سے پوچھا، بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ جو تمہارے گھر کے بغل میں رہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں میری لڑکی غلط جگہ نہ پھنسے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھا لڑکا ملے، تمہیں اس کے بارے میں اچھا تجربہ ہوگا، مجھے بتائیے وہ لڑکا میری بیٹی کے لیے کیسا رہے گا. اس پڑوسی نے جواب دیا، لڑکا تو ٹھیک ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک برائی ہے اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ پیاز بہت کھاتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا ہے، ارے بھائی میں پیاز کھانے سے کیا دقت ہے یار؟ اللہ کے رسول نے کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا ہے. کچا پیاز اور کچا لہسن حرام قرار تھوڑی دیا ہے. پیاز کھاتا تو کیا ہوا؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات. پڑوسی کہنے لگا، نہیں ہر وقت پیاز نہیں کھاتا ہے، وہ 24 گھنٹے وہ پیاز نہیں کھاتا ہے، وہ پیاز تبھی کھاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے. شراب پیتے وقت اس کو پیاز چاہیے. لڑکی کا باپ کہتا وہ اس کا مطلب شرابی ہے. پڑوسی کہتا ہے نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے شراب پیتا ہو، ہر وقت وہ شراب نہیں پیتا ہے. اچھا تو کب پیتا ہے؟ وہ شراب تب پیتا ہے جب وہ طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا ہے بڑے عجیب انسان ہو، ہر وقت شراب نہیں پیتا ہے لیکن شراب تب پیتا ہے جب اس کو طوائف کے کوٹھے پہ جانا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طوائف کے کوٹھے پر بھی جاتا ہے. پڑوسی کہنے لگا نہیں وہ ہر وقت طوائف کے کوٹھے پر نہیں جاتا ہے، بلکہ طوائف کے کوٹھے پر وہ تب جاتا ہے جب جوئے میں بہت سی رقم جیت کر آتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے اس کو تب وہ طوائف کے اڈے پر جاتا ہے اور کوٹھے پر جاتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا وہاں صاحب بڑی اچھی طریقے سے تم لڑکی کے اندر یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے اس کا بچاؤ بھی کرتے جا رہے ہو کہ ہر وقت نہیں کرتا. ارے پیاز
कोठे पे भी जाने वाला नजर आ गया। और तवाइफ के कोठे पर भी बातिला में एक लड़का है, हर वक्त नहीं जाता, जब वो जुए में बहुत माल जीत कर आता है तब जाता है। इसका मतलब वो जुआरी भी है। कहने लगा हर वक्त वो जुआ नहीं खेलता है, उसके अंदर ये अच्छाई है कि वो रोजाना जुआ नहीं खेलता है और हर वक्त भी वो जुआ नहीं खेलता है। वो जुआ भी तब खेलता है जब चोरी करके बहुत सामान लेकर आता है, या किसी के घर में बड़ा डाका डालकर जब वो आता है और उसके बाद जब बहुत माल होता है तब वो मेरे भाई जुआ खेलता है। लड़की का बाप कहता बस करो अब तुम अपने पास रखो, इन तमाम चीजों के बाद भी तुम यही कह रहे हो कि हर वक्त नहीं करता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास आकर पता चल गया कि वो शराबी भी है, कोठे पर भी जाता है, वो जुआरी भी है और साथ में चोर डकैत भी है। बताने का मकसद ये कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है और एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। इसलिए नेकी का माहौल अपनाओ और माहौल वातावरण समाज का माशरे का नेक बना दो। सुन लो, जिस इंसान को जैसी लत लग जाती है वो वैसा ही काम करता है। इसलिए अपने माहौल को, समाज को इतना नेक माहौल बना दो, यही नेकियों की लत लग जाए। जैसे नालियां और गलाज़त साफ करने वाला आदमी बेचारा एक इतर फरोश की गली से गुजरा जहां इतरी बनाए जाते थे और पूरी की पूरी सोसाइटी में इतर खुशबू का माहौल था, लेकिन ये आदमी तो गलाज़त और गंदगी को उठाने का और फेंकने का काम किया करता था। ये गलाज़त उठाने वाला, ये गंदगियां साफ करने वाला, 24 घंटे बदबू में रहने वाला, जब कन्नौज की खूबसूरत और इत्र फरोश, इत्र से लबरेज और खुशबूदार गलियों से गुजरा तो बेहोश हो गया। खुशबू उसके नाक में गई, उसको सूंघ कर बेहोश हो गया और फिर उसको होश में लाने के लिए उन इत्र वालों ने क्या जतन नहीं किए। उसके ऊपर गुलाब जल छिड़का लेकिन होश नहीं आया, उसको जन्नतुल फिरदौस लगाया, होश नहीं आया। उसकी नाक में मेरे भाइयों ऊद और कस्तूरी डाली गई लेकिन उसको होश नहीं आया, वो बेहोशी पड़ा रहा। तब लोगों ने उसके भाई को बुलाया कि तेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ इधर आए। भाई ने जब उस गली में आने के बाद देखा ये बेहोश है, कहने लगा अरे तुम क्या कर रहे हो, इस आदमी को गुलाब जल से नहला रहे हो, इतर लगा रहे हो। अरे नहीं मेरा भाई अभी होश में आएगा। फौरन वो अपने मोहल्ले में गया और अपनी गलियों में जाने के बाद उसने थोड़ी सी गलाज़त लैट्रिनों गंदगी उठाई और लाने के बाद उसने अपने भाई की नाक के पास रख दिया। उस बदबू को सूंघा, उसको होश आ गया। मेरे भाइयों, जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसको वही चीज पसंद आती है। ऐसा गंदगी उठाने वाला आदमी जब इतर फरोश की गलियों में गुजरा तो बेहोश हो गया। जब उसको लैट्रिन सुनाई गई तभी उसको होश आया। मेरे समाज में रहने वाले लोगों, अपने समाज को किस तरीके से बनाओगे, यही वजह आज हमारे समाज का ये हाल है। कहने पर मजबूर हो रहा हूं, मुझे हो सकता है कि ये कहने के बावजूद एक और मुकदमा ठुक जाए मेरे ऊपर। आए बनारस वालों, तुम्हारे इलाके की लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, इर्तिकाब का शिकार हो रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने भी अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं और उनके साथ भी मोबाइलों में चैटिंग हो रही है। 80 घाट पर जा जाकर वो भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मिल रही हैं। अपने समाज को इस तरीके का बनाने के लिए ऐ बनारस के साहूकारों तुम्हारा भी हाथ है, इस समाज के चौधरियों तुम्हारा भी हाल है। इन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नंगा माहौल और अपनी लड़कियों को बिल्कुल आजादी के साथ आजाद छोड़ देना, अकेले स्कूल भेजना और अकेले कॉलेज से लाना, ये भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए अब रोइए मत, जो माहौल आपने अपनी बेटियों को दिया है उस माहौल का असर है। जब गलाज़त का माहौल मिलेगा तो खुशबू कहां से आएगी। मेरे भाइयों, इस दौर से हमारी बहनों को, बेटियों को गुजरना पड़ेगा और आए उन बेटियों के माँ बाप तुम्हें रोना पड़ेगा, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि दूसरी तंजीमें उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। बल्कि ऐसा करने वाले गैर मुस्लिम लड़के को 2.5 लाख 5 लाख का चेक देने के लिए तैयार है, उनको घर भी देने के लिए तैयार है।
बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपके घर की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भागेगी, जाएगी, निकाह करेगी, एक तो बच्चों का माँ बनने के बाद उसको वहां से धुतकारा जाएगा। अरे जो कौम आज तक अपने ही दलित समाज को मकाम मर्तबा न दे सकी हो, अपनी बिरादरी के लोगों को मकाम मर्तबा न दे सकी हो, उसको मंदिर में बड़े बड़े लोगों के साथ पूजा करने की इजाजत न दे सकी हो, मेरे भाइयों को कौन तुम्हारी बेटियों को कैसे अपनाएगी? दो बच्चों की मां बनाकर उसको भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इधर आप भी अपनी बेटी के लिए दरवाजे बंद कर चुके होंगे, क्योंकि भाग गई हमसे गई, जब से गई हमने उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, मैं उसके लिए मर गया, वो मेरे लिए मर गई। अब आपकी बेटी उधर की भी नहीं रहेगी, इसलिए कि वो अपने समाज को जगह नहीं दे सके, तो तुम्हारी बेटियों को क्या जगह देंगे? अब उस बेटी के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जहर खा के मर जाए, आत्महत्या कर ले, या किसी तवाई के चकले और कोठे पे जाकर अपना जिस्म फरोश बन जाए और अपना जिस्म को बेचने लगे। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, इस साजिशों को कब समझोगी? अभी जवानी के जज्बे और जोश में तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें नजर आएगा, पछताओगी। और उस वक्त मौलाना जगजीत के जुमले कभी यूट्यूब पर सुनते सुनते तुम्हारे कानों में भी उतर जाएंगे और चीख उठोगी, काश उस वक्त मैंने समझदारी से काम लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसी कितनी लड़कियों की दास्तानें मैं जानता हूँ मेरे भाइयों, जो अब ना घर की रही, ना घाट की, ना वो अपने माँ बाप के घर की रही, ना उनके घर की। ऐसी कितनी लड़कियां हैं मेरे भाइयों, जो तवाइफों के चक्रों पर और अड्डों पर बैठकर अपनी जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई है, इसलिए कि उनके पास खुदकुशी और धंधे में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौन जिम्मेदार है? माहौल को कौन सही बनाएगा? मेरे भाइयों, इन तमाम गुनाहों में पड़ने के बाद अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई बीमारी पैदा की है तो उसका इलाज भी उतारा है। अगर हमें बुखार आता है, यकीनन ये बीमारी अल्लाह ने पैदा की है, तो इस बुखार का इलाज पैरासीटामोल डोलो की शक्ल में मौजूद है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं जो पैदा तो हुई हो लेकिन उसका इलाज ना आया। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज उतारा है। इसका मतलब यह है कि कैंसर का भी इलाज है।